Yes, good afternoon to dear students. Today I will discuss about the entropy changes during the thermodynamic process. This is the part of unit 2 and this is the last lecture of today. And the subject name is the thermodynamics. This is the outline of the today lectures. Entropy changes during the thermodynamic process, law of conservation of energy, heating of gas at a constant volume process, heating of gas at a constant pressure process, isothermal process or constant temperature process, reversible adiabatic process, irreversible adiabatic process, polytropic process. First slide, that is the entropy changes during the thermodynamic process. तो जनरली जो भी था एंट्रोपी में चेंजेस, यदि हम किसी गैस को गर्म करते हैं, बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी डेफिनेशन जो हमने बताया था आपको, दैट इज द इफ द हीट इज ट्रांसफर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस with respect to the absolute temperature, that makes the entropy changes. So whenever the heating or the cooling process taking behind of the substance, that is a change of entropy taking place on that conditions. So consider mkg of mass. mkg का एक मास लिया जाएगा उस सब्सटेंस का जो कि प्रेशर P1 पे है, वॉल्यूम V1 पे है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 पे है. एंट्रोपी शुरुआत में उसकी S1 रहेगी एंड इट इज हीटेड बाय द एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के द्वारा इसको गर्म किया जाएगा. देन इट्स फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बिकम्स P2, V2 and T2 and entropy will becomes S2 respectively. So what is the law of conservation of energy? That is the delta Q is equal to du plus of the work done. This is the main fundamental law of conservation of energy कि किसी भी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर करते हैं तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के समेशन के बराबर रहेगा. तो वेयर दैट इज द dq is equal to the small change in the heat, du is the small change in internal energy, that is the delta w is equal to small change of the work done, and dt is the small change in the temperature, dv is the small change in volume. That is the main fundamental formula, that is the heat transfer, that is represented by the delta q is equal to mcv dt plus of the pdv. Because of the heat transfer is taking place of the delta q is equal to that is a du plus of the delta w. तो डेल्टा w जो है वो आपका pdv के फॉर्म में है और यहाँ पे du जो है वो mcv dt के फॉर्म में है. तो डिवाइडिंग थ्रू आउट इक्वेशन, ये इक्वेशन को दोनों साइड से t से डिवाइड करेंगे तो डेल q बाई टी इज इक्वल टू mcv dt बाई t plus p dv by t. That is the equation which is dividing throughout and both side by t. Then delta q by t is equal to called the ds. ये delta q by t जो है वो ds कहलाता, तो यहाँ पे लिख देंगे and pv is equal to mrt, ये आपको पता है. Then p by t is equal to writing as mr small m r by small v. Then ds change of entropy is equal to mcv dt by t. This is the main fundamental formula कि यहाँ पे अभी आपने देखा कि t से डिवाइड किया तो दैट इज dt by t हो गया और यहाँ पे आपने p by t को जो है रिप्रेजेंट किया mr upon v से, तो यहाँ पे ये पुट अप कर दिया. देन mr dv by v. देन इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो लिमिट लगाएंगे S1 to S2 लिमिट रहेगी आपकी. प्रोसेस जो रहेगी आपकी 1 to 2 प्रोसेस हो रही है तो चेंज ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे ds इज इक्वल टू mcv and the change of temperature because of the process is going to 1 to 2, so temperature limit is presented here T1 to T2 and the dt by t plus mr, volume जो लिमिट लगी है V1 to V2 इंटीग्रेशन dv by v, that is a change of entropy. जब इंटीग्रेशन करेंगे तो S2 माइनस ऑफ S1 मिलेगा और mcv नेचुरल लॉग, जब इसका dt by t का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस mr नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1. तो दिस इज नोन एज द जनरल गैस इक्वेशंस, जहां की आपने चेंज ऑफ एंट्रोपी का फार्मूला देखा जिसमें कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्वॉल्व है. अब सिमिलरली यदि आपको इक्वेशन को चेंज ऑफ एंट्रोपी को टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में लेना है तो आपके पास पता है P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 है. उस केस में यहाँ पे V2 by V1 जो है इज इक्वल टू P1 by P2 इंटू T2 by T1 हो जाएगा. ठीक है ना. ये फार्मूला आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे T2 by T1 इज इक्वल टू P1 by P2 इंटू V2 by V1. कैन यू राइट दिस? तो इस फार्मूले में आप T2 by T1 को इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो V2 by V1 की जो वैल्यू है उसको इस फॉर्म में इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो एंट्रोपी का जो फार्मूला वो चेंज हो जाएगा. अभी आपका जो फार्मूला आ रहा था लास्ट स्लाइड में, यदि आप देखेंगे तो mcv नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस ऑफ mr नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 था.
अब यदि नेक्स्ट स्लाइड में अभी आप जाएंगे तो V2 by V1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P1 by P2 into T2 by T1। जब यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो दैट इज द MCB नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस MR नेचुरल लॉग ऑफ V1 by P2 प्लस MR नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1। तो यहाँ पे इनटू वाली जो प्रॉपर्टी है लॉग की वो प्लस में बदल जाएगी। तो MCB R यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि T2 by T1 यहाँ पे भी, T2 by T1 यहाँ पे भी है। तो MCB इन ब्रैकेट ऑफ प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस MR नेचुरल लॉग ऑफ P1 by P2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑल्सो राइटिंग एज MCP नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1, CB प्लस R क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा। क्योंकि CB माइनस ऑफ CB यदि करेंगे तो R होता है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का कांस्टेंट जो होता है, ये दोनों स्पेसिफिक हीट का डिफरेंसेस होता है, CP माइनस ऑफ CB होता है। तो MCP नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1, ये आपका CP आ गया CB प्लस R करने से, प्लस MR नेचुरल लॉग ऑफ P1 by P2, ये आपका हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बोली थी कि R इज इक्वल टू CP माइनस ऑफ CB। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो रहेगा दैट इज इक्वल टू नेचुरल P1 प्लस ऑफ MR नेचुरल लॉग ऑफ P1 by P2। तो आपकी इक्वेशन जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर की फॉर्म में आ गई है, यहाँ पे इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस आप देखेंगे वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और इक्वेशन को लाने के लिए सब्स्टिट्यूट by T1 is equal to P2 by P1, P1 by V2, and putting on these values S2 by S1 जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, दैट इज MCB नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 into V2 by V1 प्लस MR नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। ठीक है ना, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशंस को हमने चेंज कर दिया, वहां पे जो इक्वेशन आपकी बन रही थी T2 by T1 को हमने इस तरीके से लिख दिया। क्यों, क्योंकि अब हमें इक्वेशन चेंज ऑफ एंट्रोपी की इस प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में चाहिए। तो MCB नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 into V2 by V1, यहाँ पे जब करेंगे तो जो लॉग की प्रॉपर्टी रहती है इनटू वाली, ये यहाँ पे एडिशन में बदल जाएगी। तो MCB नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 प्लस ऑफ MCB नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस MR नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। ये चीज आपकी हो गई। इसी चीज को आगे अभी आप ले जाएंगे तो MCB नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 प्लस MCB प्लस R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1, ये हो गया। तो V2 by जो V1 है नेचुरल लॉग, ये आपका ब्रैकेट के बाहर है। तो MCB नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 प्लस MCP नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 हो गया, बिकॉज ऑफ CB प्लस जो R है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चेंजेस है वो CP बन जाएगा अगेन, क्योंकि R इज इक्वल टू होता है CP माइनस ऑफ CB। तो ये CP प्लस R क्या बन जाएगा, ये CP बन जाएगा। तो MCP नेचुरल लॉग ऑफ V2 by P1 प्लस MCP नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो रहेगी प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ पे इस तरीके से आएगी, MCB नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 प्लस MCP नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यदि हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास 5 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम की है, दूसरी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर की है, तीसरी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर की है, चौथी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक की है, पांचवी प्रोसेस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की है, छठी प्रोसेस पॉलीट्रोपिक की है। ये पहली प्रोसेस आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, हीटिंग ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो टेम्परेचर प्रोसेस एंट्रोपी डायग्राम में जो लाइन है वो इस तरीके से आपकी जाती है जब हीटिंग कर रहे हैं गैस की। यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं गैस की तो इस तरीके से आपकी लाइन जा रही है। तो यहाँ पे 1 रहेगा इंस्टेड ऑफ 2, 1 रहेगा इंस्टेड ऑफ 1 हियर, यहाँ पे 2 रहेगा। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो जो टीएस डायग्राम है वो चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर को, या बोलना चाहिए हीट ट्रांसफर को, जितनी भी चीज रहती है उसको शो करता है। तो कंसीडर mkg ऑफ परफेक्ट गैस बीइंग हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। mkg की गैस को हम कंसीडर करेंगे जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म की आ रही है। तो हीट सप्लाई एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने पढ़ा था, आपके फर्स्ट यूनिट में याद होगा कि कितनी हीट ट्रांसफर होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दैट इज द MCB T2 minus of T1. तो small change in heat supply that is the delta Q is equal to MCB dt dividing both side by T। तो आपको क्या मिलेगा, del Q by T ये मिलेगा is equal to MCB dt by T मिलेगा, या चेंज ऑफ एंट्रोपी DS के फॉर्म में रहेगा is equal to MCB dt by T मिलेगा। इंटीग्रेटिंग यदि आपने कर दिया दोनों लिमिट के बीच में, तो इंटीग्रेटिंग लिमिट यहाँ पे आपने लगा दी तो S1 से S2 लिमिट गई, DS is equal to MCB
एंड T1 लिमिट यहां से आ रही है T1 टू T2 dt by T। तो ये चेंज ऑफ एंट्रोपी आपकी H2 माइनस ऑफ S1 इज इक्वल टू mCb नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 मिलेगा। तो ये आपकी चेंज ऑफ एंट्रोपी है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, जहां की स्पेसिफिक हीट आ रही है Cb पिक्चर में, ठीक है ना। तो Cb कब आएगा, जब वहां पे आप देखेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस लग रही है। अब यदि गैस को गर्म किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो यहाँ पे वही चीज रहेगी, mkg की जो गैस है कंसिडर की जाएगी परफेक्ट गैस को, उसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है हीट सप्लाई एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हमने पढ़ी थी mCp T2 माइनस ऑफ T1 होता था। ये हमारा फार्मूला था जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो स्मॉल चेंज इन हीट सप्लाई दैट इज द डेल्टा Q इज इक्वल टू mCp dt, ये आपका फार्मूला हो गया। यदि स्मॉल चेंजेस हो रहा है, स्मॉल चेंजेस को यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द t कर दिया, डेल्टा Q बाय t हो गया, mCp dt बाय t हो गया, देन ds इज इक्वल टू mCp dt बाय t कर दिया। तो लिमिट यहाँ पे लगा दी 1 to 2 लिमिट लगा दी, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी H2 माइनस ऑफ S1 हो गया। और mCp यहाँ पे लिमिट लगा दी 1 to 2, T1 से T2 लगा दी लिमिट, देन dt by t दैट इज इक्वल टू mCp नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1। आइसोथर्मल प्रोसेस जो आपकी तीसरी प्रोसेस है, जिसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस भी बोला जाता है। अब आइसोथर्मल की जो प्रोसेस होती है उसमें जो टीएस डायग्राम यदि ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। देन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, कंसीडर mkg ऑफ परफेक्ट गैस बीइंग हीटेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस। तो हीटिंग और एक्सपांशन प्रोसेस के दौरान जब गैस को गर्म किया जा रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का, और उस टाइम पे जब गैस को गर्म कर रहा है तो एंट्रोपी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ रही है, S1 से एंट्रोपी बढ़ के S2 हो रही है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, क्योंकि अपने को पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस ऑफ डेल्टा W होता है। तो यहाँ पे चूंकि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर T1 बराबर T2 है, और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है आपकी mCb dt होती है। जब T1 बराबर T2 जाएगा तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस केस में जो जितना भी हीट ट्रांसफर है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू PdV, देन डेल्टा Q बाई T इज इक्वल टू P बाई T dV। ये अपन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास पता है फार्मूला PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो P बाई T इज इक्वल टू MR बाई V भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया है, तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है। तो P बाई T यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द MR बाई V। तो ये चीज लिख दी है, MR को हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, देन dV बाई V यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लिमिट आपने जब लगा देंगे यहाँ पे चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या आएगी, H2 minus of S1 is equal to MR natural log of V2 by V1 आएगा। तो दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी फार्मूला फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे आपने देखा कि वॉल्यूम के टर्म्स में आपके पास यदि मास पता है तो आप निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू पता है तो निकाल सकते हैं। चौथी प्रोसेस को देखेंगे जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। In the adiabatic process, heat is neither supplied to system or rejected by the system। एक ऐसी प्रोसेस जहां की हीट ना तो सप्लाई करते हैं ना ही रिजेक्टेड होती है सिस्टम के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो कि चेंज ऑफ एंट्रोपी है ये जीरो होती है, इसके लिए क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, या बोलना चाहिए हीट ट्रांसफर जीरो है, जिसकी वजह से जो टीएस डायग्राम में जो लाइन रहती है वो आपकी वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। तो एंट्रोपी ऑफ द गैस रिमेन्स द कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी जो एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है गैस का, उसके द्वारा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक बनी हुई है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है फ्रैक्शनलेस एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहलाती है। और इन दिस प्रोसेस जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है ये वर्क डन के बराबर होती है ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है पूरी तरीके से जीरो होता है। तो यहाँ पे टीएस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन आ रही है जिसमें कि आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे पूरी तरीके से हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या रहेगी, वो जीरो हो जाएगी। H2 माइनस ऑफ S1 इज इक्वल टू जीरो, या बोलना चाहिए जितनी एंट्रोपी 1 पे थी उतनी एंट्रोपी 2 पे रहेगी, तो इसको बोल रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देन ds इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई T इज इक्वल टू जीरो। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वहां पे होती है जहां की रिवर्सिबल प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, या बोलना चाहिए जहां पे फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं, जहां पे इंटरनल फ्रिक्शन हो रहे हैं,
इस तरह की प्रोसेस इरिवर्सिबल कहलाती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है, चेंज ऑफ एंट्रोपी, वो जीरो नहीं होती है, या बोलना चाहिए एंट्रोपी बिफोर द एक्सपांशन और आफ्टर द एक्सपांशन सेम नहीं होती है, वो वेरिएशन में लाता है। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी दैट इज अ डी एस डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एंट्रोपी आपको मिल रही है एच डैश टू माइनस ऑफ एस वन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डैश बाई टी। तो दिस इज द irreversible adiabatic process. If the adiabatic expansion is taking place by the irreversible manner between the same temperature limit, then due to the internal friction, the internal energy of the gas at the end of the expansion will be more than the 0.2 of the reversible process. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो internal energy है गैस की expansion के end में, it is the more than at of the 0.2 of the reversible process. So irreversible process always result in increase in entropy. तो irreversible process जो रहेगी वो उसकी एंट्रोपी हरदम ज्यादा रहेगी, दैट इज अ ds zero. Suppose delta Q dash heat gain by the gas due to the internal friction, then the increase of entropy will be given by the, this is the formula, that is the ds dash is equal to h dash 2 minus of s1. तो यहाँ पे जो एंट्रोपी h dash 2 आप देख रहे हैं ज्यादा रहेगी कंपेयरिंग टू s1 के। इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सिबल की केस में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल की केस में क्या हो रहा है। तो रिवर्सिबल की केस में आपने देखा था चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो है, जबकि इरिवर्सिबल की केस में आपने क्या देखा कि चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है इट इज द ग्रेटर देन जीरो। दिस इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इट मींस द हायर एंट्रोपी एट द एंड ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, देयरफॉर द वर्क डन बाय द गैस विल बी द लेस देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जितना भी काम गैस के द्वारा किया जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो बहुत कम होगा कंपेयरिंग टू द रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड U डैश 2 जो कि आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी देख रहे हैं, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट द एंड ऑफ द इरिवर्सिबल एक्सपांशन, एंड U2 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट द एंड ऑफ द रिवर्सिबल एक्सपांशन। ये आप जो डायग्राम तो देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी S1 बराबर S2 है, ये आप जो देख रहे हैं, और 2 डैश पे जो एंट्रोपी है यहाँ पे ज्यादा है कंपेयरिंग टू 2 के। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इट इज मोर देन कंपेयरिंग टू हियर इट इज अ चेंज ऑफ एंट्रोपी इज जीरो। तो S-2 it is the more than of the S2. This is called the irreversible adiabatic process and it is due to the internal molecular fraction process, जिसके कारण से कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पा रही है या एंट्रोपी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ एंट्रोपी आप देख रहे हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण ज्यादा हो रहा है। तो रिवर्सिबल यदि प्रोसेस होगी तो वहां पे हीट ट्रांसफर जीरो है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के कारण हीट ट्रांसफर यदि जीरो है तो वहां पे आपके पास एंट्रोपी जो रहेगी वो S1 बराबर S2 रहेगी। लेकिन ड्यू टू द इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन या इंटरनल फ्रिक्शन, जिसके कारण से कि यहाँ की एंट्रोपी जो देख रहे हैं आप S-2 जो है वो ज्यादा है कंपेयरिंग टू द 2 पॉइंट के। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करें जो कि आखिरी प्रोसेस है जिसमें कि आप एक्सपांशन देख रहे हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है 1 to 2, that is the PV to power n is equal to constant and temperature limit is given here T1 and T2. Here the process is also represented by the diagram S1 and S2. Then according to the first law of thermodynamics, delta Q is equal to du plus of the delta W. तो delta Q is equal to चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो कि ऑलरेडी फिक्स रहती है, इसे हम mCV dt के नाम से जानते हैं, प्लस ऑफ PdV जो आपका वर्क डन होता है। देन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी mCV dt एंड द जो वर्क डन है वो आपका PdV के रूप में है जो कि यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। द कंसीडर मेन के क्वांटिटी ऑफ परफेक्ट गैस बीइंग द एक्सपांडेड बाय द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है दैट इज डेल्टा Q by T is equal to mCV dt by T plus P by T dV। ये आपका हो जाएगा। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो रहेगी mCV dt by T plus mR dV by V रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका PV is equal to MRT इक्वेशंस है उसके हिसाब से यहाँ पे आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो MR is equal to क्या लिख सकते हैं PV by T, तो यहाँ पे वही चीज है MR is equal to PV by T भी लिख सकते हैं, या आपको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। यदि आपको V लेके आना है वो भी लिख सकते हैं। तो MR V जो आपका था वो यहाँ पे करेंगे तो P by T हो जाएगा, तो MR अपॉन V करेंगे तो P by T आप भी लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द कि आपके पास वहां पे पैरामीटर क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हैं।
दो इक्वेशन कभी मत भूलिए, एक पीबी इज इक्वल टू एमआरटी मत भूलिए, एक पीबी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट मत भूलिए। ये इक्वेशन ऐसी है, कहीं भी आपके काम आएगी। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है यहाँ पे, दैट इज द लिमिट, इट इज गोइंग फ्रॉम S1 टू S2, दैट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी ds इज इक्वल टू mcb, जो कि आप फार्मूले में देख रहे थे, एंड dt बाई टी करेंगे तो लिमिट लगा देंगे t1 से t2, दैट dt बाई टी प्लस mr, एंड लिमिट लगा देंगे यहाँ पे v1 से v2, दैट इज द dv बाई v। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो निकल के आएगी यहाँ पे mcb नेचुरल लॉग ऑफ t2 बाई t1 प्लस mr नेचुरल लॉग ऑफ द v2 बाई v1। ये आपकी चेंज ऑफ एंट्रोपी निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी के रूप में, mcb नेचुरल लॉग ऑफ p2 इन ब्रैकेट ऑफ, यदि आप करेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू mcb नेचुरल लॉग ऑफ इन ब्रैकेट ऑफ p2 v2 अपॉन mr अपॉन p1 v1 अपॉन mr प्लस mr नेचुरल लॉग ऑफ द v2 बाई v1। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू mr T1 है और P2 V2 इज इक्वल टू mr T2 है। तो T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बाई mr लिख सकते हैं, और T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 V2 बाई mr लिख सकते हैं। तो mcb नेचुरल लॉग ऑफ P2 V2 बाई P1 V1 ये आपने कर दिया, प्लस mr नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1 कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी यदि आप देखेंगे तो mcb नेचुरल लॉग ऑफ p2 बाई p1 को अलग कर लीजिए, और v2 बाई v1 को क्या लिख सकते हैं, प्लस के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हो गई। तो ये mcb नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1 प्लस mr नेचुरल लॉग ऑफ p2 बाई p1। तो m कॉमन ले लीजिए तो cb बाई प्लस r जो बन जाएगा वो cp बन जाएगा। ठीक है ना। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या मिली आपको, दैट इज गॉट इट mcb नेचुरल लॉग ऑफ p2 by p1 प्लस mcp नेचुरल लॉग ऑफ p2 by p1। ठीक है ना। दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यदि आपको प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना है तो यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू mRT1 कॉमा P2 V2 इज इक्वल टू mRT2, ये हमें पता है। तो यदि आप V1 और V2 जैसा कि फार्मूले में दिया हुआ था यहाँ पे कि P2 by P1 प्लस mcp नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1, तो V1 और V2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, V1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू mRT1 अपॉन P1, और यहाँ पे कॉमा करके करेंगे तो जो V2 रहेगा इज इक्वल टू mRT2 अपॉन P2। तो ये आप लिख सकते हैं mRT2 by P2 mRT1 by P1, ये आप लिख सकते हैं। तो mcp नेचुरल लॉग ऑफ, ये आपका ब्रैकेट में आ गया, mcp नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 ये आ गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में। बस जरूरी ये है कि आपके पास सारे पैरामीटर अवेलेबल रहने चाहिए। यदि सारे पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालने के लिए आपके पास पैरामीटर पता होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का कि आपके पास हीट ट्रांसफर पता होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, यदि उस प्रोसेस का आपको हीट ट्रांसफर पता है तो वहां पे टेम्परेचर से डिवाइड कर दी तो आपकी चेंज ऑफ एंट्रोपी पता चल जाएगी। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में था तो आपका हीट ट्रांसफर क्या था, mcb dt था। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या था, दैट इज अ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू mcp dt था। इसी तरीके से यदि आइसोथर्मल की बात करेंगे तो वहां पे हीट ट्रांसफर किसके बराबर था, वर्क डन के बराबर था। तो सारी चीजों को आपने साथ में लेके चले तो वहां पे टी से डिवाइड किया तो आपको सारे रिलेशनशिप मिलते चले गए। तो दिस इज द अनदर फार्मूला कि आप उसको और एक्सपांड करते जा रहे हैं फार्मूले को। ये कोई भी फार्मूले डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्या चल रहा है। तो उसी फार्मूले को सब्सिक्वेंट आगे बढ़ा दिया गया है। जो फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं mcb नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं mcb नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 प्लस mcb नेचुरल लॉग ऑफ, चूंकि अब यहाँ पे ये चीज कैंसिल्ड हो जाएंगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं चीजें कैंसिल्ड आउट हो जाएंगी, mm कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, आपका RR कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर, T2 P2 बचेगा, T2 अपॉन P2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, T1 अपॉन P1 बचेगा। ये चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, T2 by T1 इंटू P1 by P2। तो उसी चीज को यहाँ पे कर दिया गया। यदि आप P1 by P2 को P2 by P1 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। तो mcb नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 प्लस mcp नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 माइनस ऑफ mcp नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1। तो यहाँ पे आपके माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि आपने cp माइनस ऑफ cb करा है, इसलिए आपका नेगेटिव साइन बाहर आ गया, प्लस mcp नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या मिला आपका, यहाँ पे mcb नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस
mr नेचुरल लॉग ऑफ p1 by p2। तो इस हिसाब से भी आप देखेंगे, क्योंकि आपको r इज इक्वल टू पता है cp माइनस ऑफ cp होता है, जब आपने पुटअप कर दिया तो आपके पास s2 माइनस ऑफ s1 इस फॉर्म में आ गया। अब चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात करेंगे ड्यूरिंग द कांस्टेंट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। उस केस में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द ds इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो बट फॉर ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आपके पास हीट ट्रांसफर क्या होता है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू वर्क डन। तो गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू जो वर्क डन रहेगा उसको स्मॉल वर्क डन को पीडीवी के रूप में लिख लिया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी कर दिया, जैसे कि हरदम प्रोसेस में करते आ रहे हैं। जब आप करेंगे तो ये डेल्टा क्यू बाई टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ds बन जाएगा, इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू पीडीवी बाई टी कर दीजिए। और यहाँ पे फर्दर उसको सब्सिक्वेंट लिखते आइए, तो p बाई टी क्या लिख सकते हैं आप, mr v लिख सकते हैं। तो mr dv बाई v कर दिए यहाँ पे, और लिमिट लगा दी s1 से s2। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ds इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस वन इंटू mr v1 इंटू लिमिट जो जाएगी v1 से v2 के बीच में, यहाँ पे dv बाई v है। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या मिल जाएगी आपको फाइनली, गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस वन इंटू m cv गामा माइनस n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1, ये मिल जाएगा। इसी को सब्सिक्वेंट आप यदि चेंज करेंगे कि गामा माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, गामा माइनस n जो है आपका ये था वो चीज को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टीज आएगी, या एक प्रकार से इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, m गामा माइनस वन इंटू cv नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1। अब ये कैसे आया है ये आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू लिख सकते हैं cv गामा माइनस वन, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास r था, तो r के जगह पे क्या लिख दिया हमने, cv गामा माइनस वन, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये आपकी चीजें चेंज होती हैं, ये आपकी और चेंजेस हो गई। आप जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो h2 माइनस ऑफ s1 इज इक्वल टू m गामा माइनस n इंटू cv नेचुरल लॉग ऑफ p1 बाई p2 टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 बाई n, क्योंकि ये फार्मूला आपके पास होता है, आपने भी वॉल्यूम के बेस पे निकाला था। यदि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना तो आप निकाल सकते हैं, ये आपका मिल जाएगा। यदि आप टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो जो P2 बाई P1 होता है वो T2 बाई T1 की पावर n अपॉन n माइनस वन के बराबर होता है। इसको जब पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन में इस तरीके से निकल के आएगा। तो h2 माइनस ऑफ s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू गामा माइनस n अपॉन n माइनस वन इंटू cv नेचुरल लॉग ऑफ T1 बाई T2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप एक एक करके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब ये वाली चीजों में आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये सारी चीजें आ गई हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड है, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से फार्मूले बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये बड़े फार्मूले ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं आते हैं, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी।